Welcome back, students. I hope that you all might be excited to read the chapter further because we have just done with the half chapter, and now we are going to complete the whole chapter, right? So we were discussing about the chapter that was in the kingdom of fools, जहाँ हमने अभी तक पढ़ा था कि how the people were transferring देर जो उन पे एलिगेशंस लग रहे थे वो बार बार कैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे कि आई एम नॉट द वन, दिस इज़ द वन. तो सबसे पहले फर्स्ट वन वॉज द मर्चेंट, सेकेंड द ब्रिक लेयर, एंड नाउ इट वॉज द थर्ड चांस ऑफ द डांसिंग गर्ल. So now when the dancing girl was called, the dancing girl had become an old woman because वो पहले की बात थी, वो उस टाइम यंग थी और इस इंसिडेंट को काफ़ी टाइम हो चुका था. तो नाउ शी वॉज ट्रेम्बलिंग एक्चुअली व्हेन शी एंटर्ड द कोर्ट, शी वॉज ट्रेम्बलिंग एट दैट टाइम. सो द किंग आस्क्ड हर मैनी ईयर्स कि क्या वो तुम ही थे हु वॉज रोमिंग अराउंड द लेन जब ये ब्रिक लेयर वॉज कंस्ट्रक्टिंग द वॉल. तो शी एग्रीड टू इट. उसने क्या बोला कि हाँ मैं ही थी वो. Yes, my lord, I remember it very well. So, you did walk up and down with your anklets jingling. Now, who is asking this? The king is asking this to the old lady कि क्या वो तुम ही थी जो ऊपर नीचे किए जा रही थी और तुम्हारी anklets jingle कर रही थी. Jingle means आपने पायलों की आवाज़ सुनी होगी. That sound is known as jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. So see here it is obvious कि आपको पढ़ के लग ही रहा होगा कि how foolish the king was, जो ब्रिक लेयर की बातों पे इतनी आसानी से आएगा कि because of a girl I got distracted. Because once if you're motivated towards your work, if you're focused towards your work, nothing can divert your mind. पर क्योंकि ब्रिक लेयर अपने काम के लिए फोकस नहीं थे, that was the reason why he was distracted, and because of that incident उन्होंने एक बैड वॉल बिल्ड की थी. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down that street." तो अब उसने that old lady, क्योंकि इंसिडेंट को काफ़ी टाइम हो चुका था, तो she was thinking कि ऐसा मैं बार बार ऊपर नीचे क्यों कर रही थी. And then उसको वो याद आया and she said, "I had given some gold to the goldsmith." goldsmith कौन होते हैं यहाँ? द पर्सन जो ज्वेलरी या फिर कुछ भी ऐसा बनाते हैं. अ पर्सन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ गोल्ड, उससे कहते हैं गोल्डस्मिथ. तो उसने क्या कहा कि ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. स्काउंड्रल मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन. तो उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गोल्डस्मिथ की गलती है जो बहुत लेजी था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. A dozen times means many times. So now what is she saying? She was saying कि there was a goldsmith and because of him he was making many excuses for not making her ornaments in time. मतलब वो चाहती थी कि उसके कोई ornament हो, but he was saying कि आज लेके जाना, बाद में लेके जाना, and that is the reason why the dancing girl said that it was the fault of the goldsmith. Now you can see again अपना गलती किस पे टाल दी गई है. अब नाउ देयर इज अ न्यू पर्सन दैट इज गोल्डस्मिथ. नाउ फर्दर शी सेड दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज डैम गोल्डस्मिथ फॉल्ट. अब वो क्या कह रही है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गोल्डस्मिथ की गलती है. नाउ सी व्हाट द किंग इज सेइंग. पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, thought the king, weighing the evidence. weighing the evidence मतलब कि जो उसने बताया कि it was not my mistake, it was the mistake of the goldsmith who made me go up and down. तो ये बात सुन के king was convinced with her statement and उन्होंने एग्री किया कि ये उस लेडी की गलती नहीं है. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब किंग ने क्या ऑर्डर दिया कि फाइनली हमें एक रियल कल्प्रिट मिल गया. कल्प्रिट मतलब जिसने गलती की है, तो उसको वो जहाँ भी है उसको यहाँ लेके आया जाए. The king's believes searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो now what happened? King's believes का मतलब होता है a person जो उनके मैसेंजर्स होते हैं. तो उसने अपने मैसेंजर्स को बोला कि उसको ढूंढ के लेके आओ, और वो जब लेके आए थे
तो when he heard the accusation against him, he had his own story to tell. So now what happened? जैसे उसको पता चला कि ये सब होने वाला है, तो उसने क्या किया, उसको जब किंग के पास लेके आया गया तो ही टोल्ड हिज साइड ऑफ द स्टोरी. हिज साइड ऑफ द स्टोरी मतलब उसने अपनी स्टोरी बताई कि क्यों उसने ऐसे किया. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक पुअर गोल्डस्मिथ हूँ और ये सच बात है कि मैंने इस डांसर को अपने डोर में कई बार बुलाया था. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. अब वो क्या कह रहा है, अब उसने वो एक अपनी गलती किस पर डाल दी कि मर्चेंट की वजह से. एक मर्चेंट को ऑर्डर था, उसने उनके घर में क्योंकि वेडिंग होने वाली थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. एंड वो क्या कह रहा है कि यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, मतलब कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट, मतलब उनमें पेशेंस नहीं होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरी ज्वेलरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, दैट वॉज द रीज़न वाई कि मैं वो जो गर्ल थी डांसर, उसको बार बार उसके वर्क के लिए, दैट वॉज द रीज़न वाई द डांसिंग गर्ल्स वर्क वॉज गेटिंग डिलेड. सी अगेन, अब गोल्डस्मिथ ने अपना किस पे टाला, ये मर्चेंट पे. हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब ये देखो पूरी ऑलमोस्ट स्टोरी बता रहे हैं कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसके वजह से इस पुअर वुमेन को ज्वेलरी नहीं मिली. तो इसकी वजह से वो बार बार ऊपर नीचे किया, और क्योंकि शी वॉज डूइंग अप एंड डाउन एंड दिस डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर, और क्योंकि ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो वॉल बेकार बनी, और क्योंकि वॉल बेकार बनी तो इसकी वजह से किसकी डेथ हो गई, एक इनोसेंट मैन की. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट जिसकी डेथ हुई दैट पर्सन वॉज नॉट अ इनोसेंट मैन. ठीक है, तो नाउ ही सेड कि कैन यू नेम हिम, मतलब अब वो किंग पूछ रहे हैं गोल्डस्मिथ से कि वो रिच मर्चेंट कौन है, उसका नाम बताओ. बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें हुई हैं. तो गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen. मतलब अब जब गोल्डस्मिथ ने नाम लिया उस मर्चेंट का, तो अब क्या हुआ, पता चला कि वो और कोई नहीं, वही ओनर है जिसको सबसे पहले बुलाया गया था, जो उस घर का ओनर था, जिस घर की वो वॉल गिरी है. इफ़ यू रिमेंबर, जो सबसे पहले बुलाया गया था वो मर्चेंट को ही बुलाया गया था जिसकी वो घर थी. तो उसने किसको ब्लेम किया, ही ब्लेम द ब्रिकलेयर, एंड ब्रिकलेयर ने ब्लेम किया डांसिंग गर्ल ने ब्लेम किया गोल्डस्मिथ, एंड गोल्डस्मिथ ने किसको ब्लेम किया, मर्चेंट को. दैट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन मर्चेंट आया था वही कल्प्रिट बताया गया इसमें. नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट. मतलब सबसे पहले लाया किसे गया था, मर्चेंट को ही लाया गया था कि तुम्हारी वॉल टूटी है सो इट इज़ योर फॉल्ट. सो नाउ अगेन एट द एंड व्हेन द कंक्लूजन केम, तब भी पता चला कि मर्चेंट की ही गलती है. वेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, मतलब जब उसको बहुत गंदे तरीके से अपने कोर्ट में बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, मतलब वो रोते रोते आया. इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट. तो अब what is he saying? He was crying and he knew that the king was foolish, क्योंकि उसे पता था कि वो king foolish है and he would give him death sentence. तो उसने क्या बोला कि किसने ऑर्डर की थी ज्वेलरी, it was my father who ordered the jewelry, but क्या हुआ, अब his father is dead and it is none of his fault, मतलब अब उसकी गलती नहीं है, क्योंकि इसकी ज्वेलरी किसने ऑर्डर की थी, ज्वेलरी ऑर्डर की थी उनके फादर ने. But the king consulted his minister and ruled decisively, it's true your father is the true murderer. तो अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपने मिनिस्टर, क्योंकि एज यू ऑल नो जो किंग और मिनिस्टर थे दोनों फुलिश थे, तो उसने कंसल्ट किया अपने मिनिस्टर से, मतलब उनसे थोड़ा डिस्कशन किया, एंड रूल डिसिसिवली, मतलब वो जो इन्होंने, क्योंकि आपको पता है इनके रूल्स कैसे थे, इलॉजिकल थे, तो अभी इन्होंने फिर क्या किया,
इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, पनिशमेंट तो किसी ना किसी को मिलनी ही चाहिए। ही इज़ डेड बट somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तो ना ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है पर पनिशमेंट तो हमें किसी को देनी पड़ेगी, और क्योंकि तुम उनके बेटे हो, तुमने उनसे हर चीज़ इनहेरिट की है। मतलब व्हेन यू आर बॉर्न, आप अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हो। तो वो कहते हैं कि हिज रिचेस, मतलब जितने वो अमीर थे वही अमीर तुम भी हो, और उनके जो अच्छे चीज़ें हैं वो भी तुमने इनहेरिट किया, और उनके जो बुरी चीज़ें हैं वो भी इनहेरिट की हैं। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were on the root of this horrible crime. You must die. तो अब इसने किंग ने क्या किया? The king announced that now the merchant would have to die, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी लग गया था कि you are the criminal. And he ordered a new stake. Stake का मतलब होता है very sharp pointed end which is used to pierce through something. मतलब as you can see in the picture, a very sharp tool जिससे किसी भी चीज़ को हम pierce कर सकते हैं, even a body. To be made ready for the execution. Execution का मतलब होता है जब कोई भी official killing होती है किसी की. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling. Impaling का मतलब होता है जब आप कोई भी एक sharp pointed edge को किसी के through push करते हो. As you can see in the picture again. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. So now what happened? When this new weapon was getting ready, so the minister felt that the merchant was very thin and he could not be executed in this way. And उसने क्या बोला? उसने अपने किंग को जाके बोला, ये चीज़ बताई, और किंग नाउ ही गॉट वरीड. क्यों वरीड? क्योंकि उसने बोला था कि जो मर्चेंट है वो काफ़ी थिन है इस पनिशमेंट के लिए. What shall we do? He said, when suddenly, as you can see in the picture, who is this person? The disciple. Okay. When suddenly it struck him, all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब किंग को क्या एक आइडिया मिला that they could catch hold of a man who was fat enough to be executed with a stake. मतलब and उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि मर्चेंट को डेथ में हम वो पेनल्टी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफ़ी थिन है एक स्टेक को जो उनका स्टेक का होने वाला था वो एक्सिक्यूट करने के लिए. एंड देन नाउ दे वर थिंकिंग ऑफ पनिशिंग अनदर पर्सन इंस्टेड ऑफ द मर्चेंट. तो कैन यू, अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्योंकि वो बेसिकली इनके हिसाब से कल्प्रिट कौन था? मर्चेंट थे, बट क्योंकि वो मर्चेंट के काफ़ी थिन थे स्टेक को फिट होने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ पनिशमेंट तो देनी है, तो अब हमें कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो स्टेक के लिए फिट हो जाए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सर्वेंट्स को टाउन में भेज दिया कि कोई भी एक ऐसे फैट पर्सन को लेके आओ जो ये स्टेक में फिट हो जाए. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. Now what happened? They found the guru's disciple now who had become very fat. क्यों फैट हुआ? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. क्योंकि एज यू ऑल नो उसकी ग्रीडीनेस, क्योंकि वो बहुत लालची हो गया था इस किंगडम ऑफ फूल्स में आके, दैट एवरी थिंग वॉज कॉस्टिंग हिम, एवरी ईटेबल थिंग्स वॉज कॉस्टिंग हिम जस्ट अ सिंगल रुपी. दैट वॉज द रीजन वाई वो वापस नहीं किया. एंड ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से वो काफ़ी फैट हो चुका था. नाउ व्हाट हैपेंड? What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, ही क्राइड. तो अब क्योंकि डिसिपल अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता. तो ना अब देखते हैं रिप्लाई क्या आया. दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल्स डिक्री. डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर. किसका ऑर्डर था? किंग का ऑर्डर था, एंड दे हैव टू ओबे द ऑर्डर.
that we should find a man fit enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमें एक ऑर्डर मिले हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. अगर आपको if you remember, मैंने इससे पहले भी कहा था कि यू हैव टू गो थ्रू दिस लाइन, क्योंकि जब गुरु वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि क्योंकि ये एक फूल्स की सिटी है तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ कब क्या वो चीज़ कर सकते हैं. तो अब जब वही चीज़ हो रही थी तो ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज गुरुज वर्ड्स. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. So now what happened? जब उसको वो डेथ की, क्योंकि वो हेल्पलेस था, ही वॉज द हेल्पलेस डिसिपल, तो नाउ ही वॉज प्रेइंग टू हिज गुरु, और वो सोच रहे थे कि काश मेरे गुरु मेरी रेस्क्यू के लिए आ जाएं, मुझे बचाने के लिए आ जाएं. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. ही हैड मैजिक पावर्स. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. और अब यहाँ गुरु could visualize the disciples message. तो उनको, क्योंकि उनके पास ये मैजिक था, मैजिक पावर की वजह से उन्होंने क्या किया, उसके जो डिसिपल का मैसेज था उसको विजुअलाइज कर लिया, देख लिया था, बिकॉज ही कुड सी एवरीथिंग. ही कुड सी द फ्यूचर, द प्रेजेंट एंड द पास्ट. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब उन्होंने डिसिपल की ही गलती की वजह से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लालची हो गए थे अपने खाने के लिए, एंड दैट वाज द रीज़न वाई वो इतनी डिफ़िकल्ट एंड सीरियस सिचुएशन में ट्रैप हो चुके थे. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. तो जब as soon as the guru met his disciple, तो उन्होंने उसको गुस्सा किया, एंड उनको गुस्सा आया था क्योंकि उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी थी, उनको ओबे नहीं किया था, और उन्होंने क्या किया, उसके कानों में कुछ विस्पर किया मतलब कुछ धीरे से बोला. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, द गुरु और द डिसिपल. तो वो अब किंग के पास गए और किंग से पूछा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, गुरु या डिसिपल. तो किंग का क्या आंसर था, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क. ये कौन पूछ रहे हैं, ये किंग पूछ रहे हैं. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तो उन्होंने क्या बोला, जैसे उन्होंने वो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे मार दो, उसके बाद मेरे डिसिपल को मारना. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor का मतलब इंसिस्ट करने लगा कि नहीं, me first, you brought me here first, put me to death first. तो now इन दोनों के बीच they were fighting amongst between each other कि मुझे पहले स्टेक में डालो, मुझे पहले मार दो. ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर दो पर्सन लड़ रहे हैं कि नहीं पहले मुझे मार दो, तो एवरीबडी इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज. सो सिमिलरली हियर द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. मतलब वो शॉक थे कि ये दोनों के बीच चल क्या रहा है. बोथ वांट्स टू डाई फर्स्ट. हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि बेसिकली व्हाट हैपेंस, nobody wants to die, everybody wants to live this beautiful life, right? तो इधर opposite हो रहा था. that was the reason why king को थोड़ा अजीब सा लगा. now he asked finally, why do you want to die? we chose him because we needed a fat man for the stake. तो अब वो गुरु को बोलते हैं कि तुम क्यों मरना चाहते हो, हमने तो इस डिसिपल को इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक फैट पर्सन चाहिए था पनिशमेंट देने के लिए. You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. तो जब किंग ने ये पूछा तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप ये सारे मुझसे क्वेश्चंस मत कीजिए, आप बस मुझे पहले डेथ में फर्स्ट पुट कीजिए. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब वो क्या हुआ, क्योंकि किंग को थोड़ा डाउट हो गया तो उन्होंने कहा कि इसमें पक्का कुछ मिस्ट्री होगी, पहले मुझे तुम समझाओ कि तुम ये कर क्यों रहे हो. Will you promise to put me to death if I tell you? asked the Guru.
तो अब क्या हुआ, जैसे द गुरु रिफ्यूज टू रिप्लाई, ही सेड दैट ही वांटेड टू डाई बिफोर हिज डिसिपल। तो उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तो किंग ने क्या बोला, किंग ने बोला कि या इसमें कोई मिस्ट्री होगी तो पहले तुम मुझे रीज़न बताओ। तो जब किंग ने बोला कि ठीक है मैं आपको रीज़न बताऊंगा, पर आप प्रॉमिस कीजिए जैसे मैं रीज़न बताऊंगा यू आर गोइंग टू पुट मी इन टू डेथ। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। तो अब क्या हुआ, जैसे उसने बोला कि अगर मैं आपको रीज़न बता दूंगा तो आप मुझे फर्स्ट डेथ में रखेंगे। तो उसने, किंग ने अपने वर्ड्स दिए कि ठीक है मैं जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ हिज सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। ईयर शॉट का मतलब होता है गुरु ने क्या किया, वो अपने उसके जितने भी सर्वेंट थे उन सबके कानों के दूर गया और कुछ बोला। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. तो now he was trying to fool him. उसको कुछ ऐसी बहाने करके वो बताना चाह रहा था कि हमने काफ़ी सारी सिटीज़ घूमी हैं पर हमें सबसे ज़्यादा अच्छी सिटी आपकी लगी और हमने आपके जैसा किंग कहीं देखा ही नहीं है। That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. तो अब वो क्या कहते हैं कि दैट अगर कोई भी इसमें चूज़ करता है कि जो पहले मरेगा, इट हैड नॉट किल्ड एनी क्रिमिनल, मतलब ये जो स्टेक है इसने आज तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा है। Whosoever dies on it first will be reborn as a king of this country. तो further he said that the one who would die first on this stake would be reborn as the king of the kingdom. मतलब वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा था, by telling all this वो ट्रैप कर रहा था किंग को, मतलब उसको बेवकूफ़ बना रहा था। आपको भी समझ आ ही गया होगा कि वहाँ का जो किंग था वो काफ़ी फुलिश था, वो लोगों की बातों में बहुत ईजिली आ जाता था। दैट वॉज द रीज़न वाई गुरु ने सोचा कि मैं इसको ऐसी बातों में बहलाऊंगा ताकि ये मेरी बात में इजीली आ जाए। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो अब क्या हुआ, जैसे उसने बताया कि जो भी यहाँ पहले मरेगा वो किंग बनेगा और जो सेकंड मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। तो वो कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम किंग या मिनिस्टर बने, तो प्लीज़ माय लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुझे मारें ताकि मैं अगले जन्म में यहाँ का किंग बनूँ। एसिस्टिक लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ अ सन्यासी। एज यू ऑल नो, जो एसिस्टिक लाइफ होती है ये सन्यासी की लाइफ होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ होती है। यहाँ ज़्यादा लग्जरी या फिर काफ़ी सारे आपको कुछ भी लग्जरीज आइटम या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। The king was now thrown into deep thought. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. तो वो चाहते थे कि जैसे किंग को ये बात पता चली तो वो चाहते थे कि अगले बार भी वही किंग बने। तो अब इन्होंने क्या किया सीन, So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो अब इसने क्या बोला कि वो अपने मिनिस्टर को सीक्रेटली उन्होंने एक दिन का टाइम लिया सोचने के लिए और अपने मिनिस्टर को कुछ सीक्रेटली बोला। और क्या बोला वो, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. लेट्स गो ऑन द स्टेक अवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन. होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड. सी, होली मैन यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ गुरु के लिए यूज़ हुआ है. और उन्होंने क्या बोला कि जो ये सन्यासी, जो गुरु लोग होते हैं, कभी भी झूठ नहीं कहते हैं. तो इन्होंने क्या सच बोला था कि जो भी स्टेक में फर्स्ट जाएगा, हु इज़ गोइंग टू डाई, तो वो नेक्स्ट टाइम कौन बनेगा, किंग बनेगा. एंड हुसोएवर इज़ गोइंग टू डाई सेकेंड विल बी द मिनिस्टर. तो किंग ने क्या किया, अपने मिनिस्टर से बात की कि क्योंकि कोई भी ये होली मैन झूठ नहीं बोल सकते, तो लेट्स डू वन थिंग, पहले मैं मरता हूँ उसके बाद तुम मरना, ताकि नेक्स्ट लाइफ में भी हमें यही किंगडम मिले और यहाँ की हम किंग एंड मिनिस्टर बने. सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. एक्सिक्यूशनर्स कौन है,
जो ये बेसिकली काम करते हैं, किसी को मारने का काम। तो उन्होंने क्या बोला, एक्सिक्यूशनर्स के पास गए और उनको बोला कि आज हम रात को क्रिमिनल्स को यहाँ ले आएंगे। When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो उन्होंने एक्सिक्यूशनर मतलब जो ये लोगों को मारते हैं, तो उनको जाके बोला कि जो भी फर्स्ट पर्सन आएगा पहले उसको तुम put him to death first and whosoever is going to come second उसको second turn में करना। और उन्होंने क्या बोला कि you don't have to do any mistake. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the, क्योंकि गुरु और किंग को उन्होंने कहाँ रख दिया था, प्रिजन में रख दिया था। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रिजन में गए where the guru and the disciple were kept। उन्होंने वही कुछ कपड़े पहने, डिस्गाइज मतलब जब आप किसी को किसी और के कपड़े पहन के उनकी तरह बनते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को किंग और मिनिस्टर ने क्या किया, अपने आप को गुरु एंड डिसिपल की तरह कपड़े अपने उसमें डिस्गाइज हुए, ताकि सर्वेंट्स जब भी उन्हें देखेंगे तो उनको फर्स्ट लेके जाएंगे, किनको, किंग एंड मिनिस्टर को। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked। मतलब जैसे इन दोनों की डेथ हो गई थी, किनकी डेथ हो गई थी, किंग एंड मिनिस्टर की। तो जब उनकी बॉडी वल्चर्स को या क्रोज को, जब मर जाते हैं लोग तो क्या होते हैं, क्रोज या वल्चर्स, अगर उनकी बॉडी सिर्फ ऐसी पड़ी रहती है तो क्रोज एंड वल्चर्स उनको खाते हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब क्या हुई, व्हेन द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन अवे, जब लोगों ने देखा कि किसकी डेड बॉडी है, वो किंग और मिनिस्टर की, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गई। क्या कन्फ्यूजन हुई, ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब वो सोच रहे थे कि हमें रूल करने के लिए कोई भी किंग या मिनिस्टर है ही नहीं, तो ये किंगडम कैसे चलेगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप with them as they were preparing to leave town unnoticed। जैसे इन दोनों की डेथ हुई तो गुरु एंड डिसिपल ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, बिकॉज यही समझदारी है यहाँ से। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. So now what happened, because people were thinking कि that they needed a king and the minister, so उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुरु एंड उसके डिसिपल को to be the next new king and the minister of the kingdom. It didn't make many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru, because as you all know जो वहाँ का डिसिपल था वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश ग्रीडी था, तो उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया सोचने में कि ही एग्रीड टू इट। वो चाहता था कि वो वहाँ का मिनिस्टर बन जाए, बट क्या हुआ, गुरु ने थोड़ा टाइम लिया, ही टुक लॉन्गर टू परसुएड, मतलब उसने उन्हें सोचने में थोड़ा टाइम लिया कि यहाँ का किंग बनना सही रहेगा या नहीं। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम किंग और मिनिस्टर यहाँ के बन जाएंगे, बट सिर्फ एक कंडीशन में। एंड व्हाट वाज द कंडीशन, कि जो ओल्ड लॉज थे, ओल्ड लॉज क्या थे कि पीपल मॉर्निंग में उठ सो जाते थे एंड रात को वो लोग अपना नाइटली बिजनेस करते थे। तो किंग और डिसिपल को वैसे भी पहले ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि जो ओल्ड लॉ है वो अब यहाँ ना हो। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a doo-doo. It became like any other place. So now what happened? जब उन्होंने एग्री किया था तो उन्होंने ये भी बोला कि अब से उसके बाद से क्या हुआ, पीपल एग्रीड, इनके कंडीशन को एग्री किया उन्होंने। और उसके बाद से जब किंग और मिनिस्टर की, जो पुराने किंग और मिनिस्टर की डेथ हो चुकी थी, तो अब इन्होंने क्या किया, अब नॉर्मल इनकी तरह लाइफ होने लग गई थी। मॉर्निंग में ये लोग काम करते थे, नाइट को सोते थे, एंड उसके बाद क्योंकि वो हर एक प्लेस की तरह हो गई थी, तो उसके बाद किसी ने भी वहाँ 1 रुपये का कोई भी सामान नहीं होता था। मतलब जो नॉर्मल प्लेसेस में होते हैं वही रेट होते थे, क्योंकि
सी इन दिस चैप्टर आपको ये भी पता चलेगा कि किंग वॉज नॉट एट ऑल सेल्फिश, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अगर वो चाहते तो वहाँ की ईजिली किंग बन जाते, पर उन्होंने काफ़ी टाइम लिया टू थिंक कि वेदर विल आई बी एबल टू रूल दिस किंगडम, और उन्होंने वो जो पुराने फुलिश रूल्स से वो सबको हटा दिया, एंड ही वांटेड द पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स टू लिव हैप्पीली, और वहाँ कोई भी आगे से कोई भी फुलिश डिसीजन ना लिया जाए. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू, एंड अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आई एम श्योर दैट यू वुड हैव लव्ड दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू बोथ द वीडियोज़. आप फर्स्ट से वो वीडियो देखें टिल दिस वीडियो, टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, so that you will be more clear about the chapter, which is very interesting.